Assalamu alaikum class. This is your second online lecture of control systems, and in this lecture we will start from our chapter 8, and the name of chapter is root locus techniques. Means in this chapter we will sketch the root locus. Actually we sketch as we plot our zero poles plot. Similarly we will plot here zero poles, and also the branches means when the gain goes infinite where the poles and zeros move. Okay, that is the root locus. And what is the techniques to sketch root locus we will discuss in this chapter number 8. Okay students. Okay, introduction. What is the introduction of this chapter? Root locus, a graphical presentation of the closed loop poles as a system parameter is varied, is a powerful method of analysis and design for stability and transient response. Actually what has been asked about the root locus, this is the graphical representation of what? This is the graphical representation of closed loop poles. Okay, not open loop poles. It is the graphical representation of closed loop pole as a system parameter. हम closed loop poles को system का वो parameter कह रहे हैं is varied, जो कि vary हो जाता है, is a powerful method of analysis and design for stability and transient response. अब तक हमने chapter 6, chapter 4, chapter 7 जिनमें भी हमने स्टेबिलिटी चेक की थी, वहाँ पे हम अपने ओपन लूप पोल्स को चेक करते थे. ठीक है, और उसमें क्या था कि हम अपने पोल्स, इफ़ द पोल्स आर ओपन लूप पोल्स दे डोंट चेंज, एंड इफ़ द पोल्स आर क्लोज्ड लूप पोल्स दे चेंज विद द change in gain or with any change in system parameter. That's why we have to deal what happens with the stability and transient response when the closed loop poles change by any system parameter change, or when the gain of the system changes. Okay, feedback control systems are difficult to comprehend from a qualitative point of view, and hence they rely heavily upon mathematics. The root locus covered in this chapter is a graphical technique that give us the qualitative description of a control system's performance that we are looking for, and also serve as a powerful quantitative tool that yields more information than the methods already discussed. Okay, actually इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली क्यों इतना इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं? बिकॉज इट गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई इट इज़ क्वांटिटेटिव टूल. मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि गेन से हमारे सिस्टम के पे क्या इफ़ेक्ट होता है. इन व्हाट विल हैपन इन रूट लोकस में हम देखेंगे कि अगर हमारे गेन की वैल्यू 0 से 0.1 होती है या 0.2 होती है तो हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है. वी विल हैव द रेंज ऑफ फॉर द वैल्यूज़ ऑफ के for which the system is stable or unstable or marginally stable. Okay, up to this point gains and other system parameters were designed. अब तक जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 तक, उसमें हमने क्या किया था? हमने गेन्स और सिस्टम के जो बाकी के पैरामीटर्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया था टू यील्ड अ डिज़ायर्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फॉर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. अब तक आपने जितने भी सिस्टम्स को डील किया था, जिनके आपने गेन विद रिस्पेक्ट टू गेन और कोई भी पैरामीटर जो आपने डिज़ाइन किया हो, के की वैल्यू डिज़ाइन की हो, वो हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए की थी. इवन दो द रूट लोकस कैन बी यूज टू सॉल्व द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट्स रियल पावर लाइज इन इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ ऑर्डर हायर देन 2. कहते हैं कि जो पहले अब तक हम कर चुके हैं वो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए किया था. ठीक है, और रूट लोकस भी उस फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पे काम कर सकता है. उनका डिज़ायर जो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है विद रिस्पेक्ट टू गेन और एनी पैरामीटर, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन रूट लोकस क्या है? रूट लोकस हम 2 से ज़्यादा ऑर्डर वाले सिस्टम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ बेस्ट फॉर द सिस्टम्स हैविंग ऑर्डर हायर देन 2. For example, under the right condition, a fourth order system's parameter can be designed to yield a given percent overshoot and settling time using the concepts learned in chapter 4.
चैप्टर 4 में आप लोगों को अगर याद हो तो हम क्या करते थे, हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स होते थे और उसमें हम कहते थे कि अगर हमें इतना परसेंटेज ओवरशूट चाहिए या इतना सेटलिंग टाइम चाहिए, इतना पीक टाइम चाहिए, तो क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, ठीक है। ये सारा काम हमने चैप्टर 4 में किया था। सिमिलरली वी कैन डू हेयर एज वेल बाय रूट लोकस एंड फॉर द सिस्टम्स order greater than 2, third order, fourth order and fifth order. Okay students, okay this is the same. Okay, besides transient response के अलावा जो हम इसमें कर सकते हैं क्या है, द रूट लोकस ऑल्सो गिव्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम स्टेबिलिटी। रूट लोकस से हम ग्राफिकली चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो कहाँ तक स्टेबल है और कहाँ जाके इनस्टेबल हो जाएगा। वी कैन क्लियरली सी रेंजेस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, हम स्टेबिलिटी की रेंज चेक कर सकते हैं, रेंजेस ऑफ इनस्टेबिलिटी एज वेल, कि किस जगह कितनी एरिया तक हमारा सिस्टम जो है वो इनस्टेबल है, एंड द कंडीशंस दैट कॉज अ सिस्टम टू ब्रेक इनटू ऑसिलेशंस, और वो कंडीशंस भी हम बता सकते हैं कि इस तरह की गेन की वैल्यू हुई या सिस्टम इस तरह से हुआ तो वो ऑसिलेशंस में चला जाएगा कि सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। बिफोर प्रेजेंटिंग रूट लोकस प्रेजेंट करने से पहले वो क्या कहते हैं, लेट अस रिव्यू टू कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड फॉर ensuing discussion. First one is control system problem and second is complex numbers and their representation as vectors. Okay, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल 8.1 है मेरा ख्याल है, हम वो इसलिए करेंगे ताकि आपको जैसे कि हम वेक्टर्स को पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी पढ़ते हैं, और हमें पता है कि अगर वेक्टर्स हैं तो उनकी मैग्नीट्यूड कैसे शो करा सकते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और एंगल उनका कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। वो सब हम करेंगे, क्योंकि हमें जब रूट लोकस हम पढ़ेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उस टाइम में उसकी हेल्प हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो वो इसलिए हम सिर्फ ये रिवाइज़ करें सारी चीज़ें। Okay, the control system problem. We have previously encountered the control system problem in chapter 6, whereas the poles of the open loop transfer function are easily found. Typically, they are known by inspection and do not change with change in system gain. ये बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, चैप्टर 6 में हम क्या थे, राउथ हर्विट्ज से अपने टेबल बनाते थे और फर्स्ट बाय सीइंग फर्स्ट कॉलम हम बता देते थे सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। लेकिन उसमें क्या था, हम अपने ओपन लूप, अगर हम ओपन लूप पोल्स को देखते थे, ठीक है, ओपन लूप पोल्स डायरेक्ट हम देख लेते थे कि डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स हैं डेफिनेटली वो ओपन लूप पोल्स थे, और हम बता देते थे यहाँ पे हमारे ओपन लूप पोल्स पड़ी हैं, ठीक है। और वो पोल्स हमारे सिस्टम का गेन चेंज करने से चेंज नहीं होते, ठीक है। द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आर मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड। क्लोज लूप पोल्स ट्रांसफ़र फंक्शन के फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप पोल्स। Typically, they cannot be found without factoring the closed loop system's characteristic polynomial. अगर आपको closed loop poles फाइंड करने हैं तो हम क्या है, बाय इंस्पेक्शन और डायरेक्ट उसको देख के नहीं बता सकते कहाँ पड़े हैं पोल्स हमारे क्लोज लूप। हम क्या करते हैं, हम अपनी जो डिनोमिनेटर होता है क्लोज लूप पोल का, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनती है हमारी 1 + k GS उसको फैक्टराइज करके फिर बता सकते हैं दीज आर आर क्लोज लूप पोल्स एंड देयर पोजीशन इज देयर। सो द डिनोमिनेटर ऑफ द क्लोज लूप पोल एंड फर्दर द क्लोज लूप पोल चेंजेस विद चेंज इन सिस्टम गेन। ये बात हमेशा याद रखें कि जो ओपन लूप पोल्स होते हैं दे नेवर चेंज with the change in system gain, but closed loop poles change with change in system gain. Okay, a typical closed loop feedback control system is shown in figure 8.1a. अगर फिगर 8.1a देखें तो हमारे पास क्या है, इनपुट सिग्नल है, ये हमारे पास k इंटू जी ऑफ एस फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन। नोट करें, मैंने शायद एक क्वेश्चन में पेपर में भी दिया था जिसमें मैंने लिखा था फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन, एंड और उसमें शायद जो काम करना था वो क्लोज लूप पोल्स के साथ करना था, ठीक है। फॉरवर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन ये है k इंटू जी ऑफ एस। अगर हम इसको भी एक्सपेंड करें तो एक गेन ब्लॉक k था और साथ में सिस्टम कौन सा ट्रांसफ़र फंक्शन था, जी ऑफ एस। ओके, सी ऑफ एस हमारी आउटपुट है, फीडबैक में एच ऑफ एस का ब्लॉक लगा हुआ है हमारे, एंड दिस इज़ द एक्चुएटिंग सिग्नल बाय जनरेटिंग इन द डिफरेंस ऑफ इनपुट माइनस आउटपुट। ओके, दिस इज़ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। दिस इज़ द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम, k g of s into k g of s over 1 + k into g of s h of s. This is for the
feedback system, so they both of they are equivalent. ओके ये सिंपल हमने जो हमारा सिस्टम था जी ऑफ एस उसका बता दिया कि दैट सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ सम न्यूमरेटर एंड सम डिनोमिनेटर. सिमिलरली जो हमारा फीडबैक में एच ऑफ एस का ब्लॉक है दैट हैज़ ऑल्सो सम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स. व्हाट इज कैपिटल टी ऑफ एस? दिस इज आर क्लोज लूप total complete transfer function of that system which is capital T of S. So this is K, which was K G of S over 1 plus G of S into H of S. So by putting values of G of S and H of S, this is equal to K N G of S D H of S over D G of S D H of S plus K N G of S N H of S. आप इक्वेशन 8.1 और 8.2 को अपनी जो इससे पहले हमने लास्ट इक्वेशन इक्विवेलेंट देखी है कि दैट इज़ दिस वन. ठीक है, इसमें हम जी ऑफ एस की जगह और एच ऑफ एस की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास फाइनल ट्रांसफ़र फंक्शन ये आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हमने देखना होता है कि जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने पोल्स को और ज़ीरोज़ को कैसे प्लेस करते हैं, और उसके बाद अगर हमें किसी सिस्टम पे किसी पॉइंट का इफ़ेक्ट देखना है तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे और उसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ एग्जांपल 8.1 और ये एग्जांपल सिंपली हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या हैं और हम उनको इवेल्यूएट कैसे कर सकते हैं, वाया वेक्टर्स कैसे इवेल्यूएट कर सकते हैं. इस एग्जांपल में हम सिर्फ ये करें, इसमें कोई रूट लोकस हम नहीं देख रहे. इसके बाद से नेक्स्ट हम 3, 4, 5 जितने भी सवाल करेंगे दे विल बी फ्रॉम रूट लोकस टेक्निक्स और रूट लोकस. ठीक है, हम उसमें रूट लोकस स्केच करेंगे. ओके, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? गिवन एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 2. कोई भी सिस्टम गिवन है या कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास गिवन है एंड उसमें पूछा क्या गया है, फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एस एट द पॉइंट एस इज इक्वल टू -3 प्लस J4. एक पॉइंट एस है -3 प्लस J4, उस पे हमने इस एफ ऑफ एस को इवेल्यूएट करना है. ठीक है, ओके. सबसे पहले हम इसको प्लॉट करते हैं. प्लॉट क्या करेंगे, अभी आप सोल्यूशन को मत देखें. सिंपल अगर मैं कहती हूँ ये आपके पास सिस्टम है, ये इसमें एक ज़ीरो है विच इज़ एट -1. ठीक है, और कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं? 2. एक ज़ीरो पे है और एक -2 पे है. सिंपल सबसे पहले स्टेप में आपने ज़ीरो पे एक पोल ड्रॉ किया और एक -2 पे किया. 2 पोल्स थे हमारे पास. ठीक है, तीसरा हमारे पास जो एक ज़ीरो था दैट वाज एट -1, वो हमने प्लॉट कर दिया. ठीक है, इस ग्राफ में हमारे पास सिंपल अभी हमने 2 पोल्स और एक ज़ीरो को प्लॉट किया है जो कि हमारे सिस्टम में गिवन थे. उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हमने एफ ऑफ एस को इवेल्यूएट करना है वो पॉइंट ड्रॉ करेंगे. s इज इक्वल टू -3 प्लस J4. रियल वैल्यू इज़ -3 इन कॉम्प्लेक्स value minus imaginary is J4. Okay, this is your, we know this is the imaginary axis and this is the real axis. S is equal to sigma plus J omega. So J4 तक हम इसको ड्रॉ करते हैं, J4, और यहाँ से डाउनवर्ड्स रियल एक्सिस पे कहाँ आएंगे? -3 पे. ठीक है, सो -3 प्लस J4 ये एक हमारे पास पॉइंट है. ठीक है, तो हमने ये पॉइंट -3 प्लस J4 को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. इस टाइम पे हम 2 पोल्स, एक ज़ीरो और इस पॉइंट को ड्रॉ कर चुके हैं. ये 4 चीज़ें हम प्लॉट कर चुके हैं. उसके बाद क्या है, हमें वेक्टर्स प्लॉट करने हैं. कौन से वेक्टर्स? उसने कहा था आपने इसको इवेल्यूएट करना है एट दिस पॉइंट. ठीक है, तो हम इस सिस्टम के पोल्स और ज़ीरोज़ को प्लॉट कर चुके हैं और हम वहाँ से मूव करेंगे दिस पॉइंट टुवर्ड्स दिस पॉइंट. इस जी पोल से इस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ किया हमने, इस ज़ीरो से इस पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया और इस पोल से इस पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया. ये थर्ड स्टेप था. सबसे पहले स्टेप में हमने पोल्स और ज़ीरोज़ को प्लॉट किया, फिर हमने इस पॉइंट को ड्रॉ किया और उसके बाद हमने पोल्स और ज़ीरोज़ से इस पॉइंट तक का एक वेक्टर जनरेट कर दिया है. ठीक है, ओके. अब हम क्या करेंगे, जो वेक्टर 1, 2 और ये 3 वेक्टर्स हमने जो फाइंड किए हैं, हम इनके मैग्नीट्यूड्स और इनके एंगल्स को फाइंड करेंगे. Okay, the problem is graphically depicted in figure 8.3 where each vector of the function is shown terminating on the selected point.
द वेक्टर ओरिजिनेटिंग एट द 0 एट -1 इज ओके। सिंपली वो बता रहा है कि हमने जो प्रॉब्लम था वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, और इसमें क्या है, अब हमारे पास 3 अदद जो हैं वेक्टर्स हैं जो इस पॉइंट तक जा रहे हैं, पॉइंट वो जो हमें गिवन था, ठीक है। अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स और एंगल्स को फाइंड करेंगे। ओके, if I say first I will calculate the magnitude and angle for this zero vector which was generated from this 0, and this 0 is lying at -1। ओके स्टूडेंट्स, -1 से लेके -3 तक हमारे पास स्केल में कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, 1 से 2 और 2 से 3, वी हैव 2 वैल्यूज़ ऑन दिस एक्सिस, ठीक है। मैग्नीट्यूड एक्चुअली मैं इसकी बता रही हूँ, 1 से लेके 3 तक 2 मैग्नीट्यूड है, ओके। और इस y एक्सिस पे हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है, 4, ठीक है। सो आपको भी पता है अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, हम कहते हैं रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सो रियल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस दिस y एक्सिस का स्क्वायर कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 20। सो अंडर 20 इस वेक्टर की हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है, ओके। अब मैं इस आपको बाकियों की मैग्नीट्यूड निकालती हूँ, फिर एंगल का बताऊँगी कैसे लेंगे। द वेक्टर ओरिजिनेटिंग एट द पोल एट द ओरिजिन इज़, वो पोल जो हमारा ओरिजिन पे है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सिमिलरली 0 से लेके इस पॉइंट तक हमने जाना है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा यहाँ है। 0 से 1 1 स्टेप, 1 से 2 2 स्टेप, 2 से 3 3 स्टेप। इस रियल एक्सिस पे हमारी 3 स्केल आ गया है, और अगेन वाई एक्सिस पे हमारा 4 है, फिक्स्ड ही है, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 विच इज़ अंडर रूट 25, और उस अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास उस पोल का जो 0 पे पड़ा था, ओरिजिन पे पड़ा था, ठीक है। नाउ for this last pole which is at -2, what is the magnitude of this vector। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं, 2 से लेके 3 तक हमारे पास एक स्केल है, और y एक्सिस पे अगेन 4 का स्केल है। सो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 17, अंडर रूट 17 उसका मैग्नीट्यूड आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने तीनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, अंडर रूट 25 और 17 आपको पता चल गया कि हम कैसे फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सिंपली हमने रियल एक्सिस के स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दिया है। अब देखिए हम एंगल फाइंड करते हैं। इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड एंगल फॉर दिस ज़ीरो वेक्टर, जो 0 के लिए हमने वेक्टर ड्रॉ किया था, तो देखिए ये ट्राइंगल बनेगा हमारे पास। मैं यहाँ पे आपको देखती हूँ अगर ड्रॉ कर सकी तो, ये ठीक है, हमारे पास ये एक एंगल हो जाएगा। सॉरी ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, एक्चुअली परपेंडिकुलर हम ऐसे ही डालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें 0 का एंगल चाहिए, ठीक है। ये एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, ठीक है, अगर मुझे ये एंगल फाइंड हो जाए तो मैं 180 में से इसको माइनस कर लूँ तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड एंगल इज द tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। सो ये एंगल हमारे पास क्या आएगा, दिस परपेंडिकुलर विच इज़ 4 बाय दिस स्केल, दिस इज 2, 4 बाई 2 इज़ 2, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। जो भी tan इनवर्स ऑफ 2 आएगा आपको उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी 116.6 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ये लाजमी ऐसे ही आएगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेट किया, आपके भी आंसर ठीक आएंगे। ओके, द वेक्टर ओरिजिनेटिंग एट द पोल एट द ओरिजिन इज़, जो पोल हमारा ओरिजिन पे है। अब अगर इसका एंगल फाइंड करना है तो डेफिनेटली हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अगेन दिस एंगल क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर ओवर दिस टोटल बेस, ठीक है। सो 4/3 tan इनवर्स ऑफ 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3 जो भी आएगा 180 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पोल जो हमारा ये है,
दिस इज़ टेन इनवर्स ऑफ y ओवर दिस x, ठीक है। जो भी एंगल हमारे पास आएगा वो ये होगा, 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड एंगल ये वाला आ जाएगा, ठीक है, और ये 104 ही आएगा। ओके ओके, अब हम क्या करें, जो 8.8, 8.9 और 8.10 इक्वेशन है उसको हम 8.5 और 8.6 में पुट करेंगे। टोटल सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड और एंगल है वो फाइंड करने के लिए, दिस m इज़ मैग्नीट्यूड एंड दिस थीटा इज़ द एंगल। ओके, हमें करना क्या होता है, एक्चुअली फार्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ। 8.5 और 8.6 इक्वेशंस हैं क्या, हमें करना होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज़ीरोज़ divided by product of all poles, magnitude of product of zeros and product of magnitude of all poles, ये डिवाइड करते हैं इनटू एंगल के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ज़ीरोज़ के एंगल्स को लिखते हैं सम करके, माइनस सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पोल्स। अब हमारे पास चूँकि एक ही ज़ीरो था, उसका मैग्नीट्यूड 20 था, डिवाइड कर दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ पोल्स 5 इंटू √17, ठीक है, और एंगल्स हमारे पास एक ही ज़ीरो था तो 116.6 डिग्री, माइनस दो पोल्स थे तो 126.9 माइनस 104, सो दिस इज़ द टोटल मैग्नीट्यूड एंड एंगल एट दिस पॉइंट फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज़ द रिजल्ट फॉर इवेल्यूएटिंग दिस एफ ऑफ एस एट पॉइंट -3 + J4। अब मैं आपको दिखाती हूँ इक्वेशन 8.5 और 8.6 क्या थी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा 8.5 इक्वेशन और 8.6, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैपिटल M ऑफ एफ ऑफ एस एट एनी पॉइंट S, हम भी तो एक पॉइंट S गिवन था, उस पर अपने एफ ऑफ एस को इवेल्यूएट कर रहे थे, तो उस पर जब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की मैंने यही बोल के कहा था आपको, ओके दिस पाई साइन मीन्स प्रोडक्ट, ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज़ीरोज़ लेंथ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के जो मैग्नीट्यूड हैं डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल पोल लेंथ्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जितने भी पोल्स हैं उनकी लेंथ्स। ओके, ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की है। अगर हमने एंगल थीटा ऑफ एफ ऑफ एस एट एनी पॉइंट एस कैलकुलेट करना है तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ज़ीरोज़ एंगल्स, जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनके जो हमने एंगल्स कैलकुलेट किया उन सबको सम करके लिखते हैं, माइनस सम ऑफ ऑल द पोल एंगल्स, जितने भी पोल्स हैं उन सब के एंगल्स को सम करके लिखते हैं, ठीक है। अब आ जाएं हमारी एग्जाम्पल की तरफ, दिस वन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह ही हमारे पास एक ही ज़ीरो था, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कर दिया पोल्स के मैग्नीट्यूड, क्योंकि दो पोल्स थे, इनटू सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ज़ीरोज़, एक ही ज़ीरो था उसका एक एंगल, माइनस पोल्स हमारे पास दो थे उन दोनों को ऐड करके माइनस कर दिया, तो फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कोई रूट लोकस डिज़ाइन नहीं किया, ना कोई टेक्निक लगाई, सिंपल हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एस है या सिस्टम है, ट्रांसफ़र फंक्शन है, और उसको हम इवेल्यूएट करते हैं किसी भी एस पे, किसी भी एस पॉइंट पे, रियल वैल्यू इमेजिनरी कोई भी एस था उस पे हमने इवेल्यूएट किया है, तो उसमें भी हमने सिंपल देखा यही है कि देखें उसमें वेक्टर्स प्लॉट किया, उन वेक्टर्स का उस पर इफेक्ट क्या आ जाता है, उनकी हम मैग्नीट्यूड्स एंगल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्यों ये एग्जाम्पल करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अभी जब हम रूट लोकस डिज़ाइन करेंगे तो उनमें हम इसी तरह अपने रूट्स को और ज़ीरोज़ को प्लॉट करेंगे और हम एक रूट लोकस डिज़ाइन करेंगे। Okay students, this was the second lecture after your second sessional and the first lecture from chapter 8 and in the next lecture from chapter 8, next 2, 3 or 4 lectures we will discuss the root locus techniques. Okay students, thank you.